we are coming to the question 17. Clear? Okay, who will Yes. read this question? Okay, in question 17, and the ordered pairs below given the winning times in seconds of the women's 100-meter freestyle in the Olympiad from Olympic from 1984 through 2012. Okay, the data is now given and sources, each and everything is given. So you have to see what this ordered pair is telling. What are these two numbers are telling to you according to this problem? So this is a sports related problem. Clear? So before solving problem, first of all, you have to understand what is given to you all. Clear? So this is given that the ordered pair below give you the one thing is time in seconds, and the second thing is year from this 1984 to 2000. So clearly it is given that x value. Why? Because in ordered pair you can easily understand the first value is related with x-axis and the second number is represent the value of y. So that's why sorry. So this is in fact value of x and y. So x is here year and y is I think time in seconds. Yes or no? So these ordered pairs are given to you. Now what we have to do, this A part is telling sketch a scatter plot for the data. So in order to sketch one thing, you direct these two x and y value, or other thing is you may use any number for these years. Let's suppose it is given, let y represent the winning time in seconds that is given, and t equal to 84 represent 1984. So that will be sometime optional. Okay, why? Because this question it is given. Okay, t represent t 84 represent 1984 in the same way. 1985 we have to use t equal to 85 and so on. So first of all, uh, in order to solve a part, you have to construct the scatter diagram. Okay, and we are solving, but let me complete this problem B and C part, then we are coming towards A. So in B part, sketch the line that you think best approximate the data and find an equation of line. Clear? So in A part, what you have to do, you have to just scatter diagram. Clear? You have to plot these points in this X and Y, and both are positive, so all points will remain in first quadrant. And then B is asking, okay, you have to construct a line that will be a best fitted. For example, according to scatter diagram, line will be either upward, whose slope is positive, or line will be downward. That will depend on part A. But part C is asking, in part B, we have to also calculate the equation of the line. So we will do, and you will see how we are attempting this question. So before solving, let me complete C and D part. C is asking use the regression features for graphing utility that we have to do on and response for C. And the D is compare the line model part A and B with a linear, and in D part you have to compare the answer with B and C. Clear? Okay, so first of all, you have to remember these points so that when I open my Desmos, you have to tell me. Okay. You may also note down these 1, 2, 3, 4, 4, and 4, 8 ordered pairs. Okay, let me open now Desmos. सर स्क्रीन पास हो गई है। भाई वो सर ने की है। Desmos नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं नजर आ रहा। नहीं सर। वैल्यू नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? सर कर रहे हैं, 2 मिनट।
Okay. Yes sir, हो गए. सर स्क्रीन ही गुम हो गई. This is Desmos. So its screen is clearly visible to you all. Yes sir. Okay. Why? Because for A part, B part, and C, for A and B, especially, you may also solve on your registering page, but this will be easy here. So for a sticker diagram, you press this plus button, and this plus will give the table here. And for table, okay, now in this table, you have to tell me the value of x, y. One value of x, y, I think it was 80. Yes, 84 sir. 84 to और 55.92. 55.92. 92. Okay. Second point was 1988. 88. Second one 54.93. 54.93. Okay. Third one is 92. Right side 92. 92. 54.64. 4.64. Okay. Next 96. 96. 54.50. Next 2000. 00. 00. Yes sir. 2000 sir. So for 2000, what should I write for value of x and y? 100 sir. 100. Sir, so 100. 100. Okay. 100. Value of y is 53.83. 53.83. 83. 104. 53.84. Point 84. 108. 108. 53.12. 53.12. Yes sir. Next 112. 53. next. बस हो गया सर. Okay, now here you can see that if I zoom out, these are your points, or this is in fact scatter diagram. Or you may also restrict the domain of x and y. For example, for x we need from where? From, let's suppose, 80 to 120. 80 to 120. And Yes, sir. why I think from y is, let's suppose, from 50, I think. 50 to 60 कर लो. 5 कर 50 to 55 कर Okay, these 8 points are plotted in this
this will be your scatter diagram. Means this A part can be easily constructed by your hand. So we do not need, but why? Because we may use here use of technology Desmos that here in this example. In this way, you may easily understand how. Okay, so this is A part. Is it clear to you all? Is there any problem in order to construct the scatter diagram? No, sir. No, sir. It's clear. Hanud, we cannot determine here in this course by hand equation. We can determine equation by hand, but here up to this is our restriction of our syllabus. We have to determine through this Desmos. Clear? ये मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा. एब्सेंट थे क्या क्लास में आप? Okay. आउट करें तो Means I'm asking you, is there any problem in A part? ये A part हमने कर लिया है. ये solution. सर ये जो हमने क्वेश्चन करने हैं 1.10 के ये डिस्मोस से हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. यानी डिस्मोस के बगैर सर हम समझने की कोशिश करें, डिस्मोस से तो होते हैं. आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो रिग्रेशन के हैं वो डिस्मोस से करें, बाकी रिग्रेशन के अलावा ना वो आप बाय हैंड करेंगे, जो डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है सर, इसमें जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो लगता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा. चलिए हम इसके बी पार्ट पर आते हैं. तो बी पार्ट क्या कहता है, रफली मुझे बताए. वेयर शुड बी द स्ट्रेट लाइन. एक मिनट में बुक ओपन करूं, अगर बुक नजर आ रहा है आप लोगों को? नो सर. नो सर. डेस्मोस ही नजर आ रहा है. नो सर. अभी लक्ष्मण नजर आ रहा है. मुझे तो सर लक्ष्मण नजर आ रहा है. ओए ओए. हाँ अब बताएं. सर डेस्मोस नजर आ रहा है. सर. और अब अभी आया. अभी आया. ओके अब देखिए, अभी आया. लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ब्लैंक पेज पर बनाता हूँ, तो एक पार्ट ये कहते हैं आप लोगों ने स्केटर डायग्राम बना लिया. ठीक है, आप लोग वैल्यू अकॉर्डिंगली मतलब इसको वो अकॉर्डिंग स्केल कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी आप लेट सपोज 50 टू ऑनवर्ड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, और यहाँ पर भी लेट सपोज 80 टू लेट सपोज जो भी है 150 तक स्केलिंग कर सकते हैं. और आपने देखा लेट सपोज मैं अब रफली बना रहा हूँ स्केचिंग के, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह कुछ डाउनवर्ड सी पॉइंट मुझे नजर आ रही है, आप लोग देखें. ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह पॉइंट्स. So now what question part B is asking, sorry, B is telling sketch a line that you think best approximate the data and find an equation of the line. So मुझे बताएं कि कैसे बेस्ट लाइन होगी, मतलब चले मुझे स्लोप बताएं, किस तरह लाइन बनाऊं, स्लोप पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ? नेगेटिव के साथ. नेगेटिव के साथ. क्लियर, यानी कि डाउनवर्ड फ्लो होगा. something that will be just like this one. So this is in fact part A and B both. Clear? And for C you will be determine its equation. Clear? तो वो हम डेस्मो से कर रहे हैं. सर माइक्स तो म्यूट करवाए ना सारे क्लास की, 2-3 की खुली हुई हैं तो माइक्स. सना माइक बंद करो. सना अपना माइक म्यूट कर. ना माइक ऑफ कर दें. सना किसके साथ गपशप कर रही है? तो पता नहीं सर. बच्चे पढ़ रहे हैं भाई. हमें दिख रहा है पढ़ रहे हो आप. ये अली हुसैन. सर ये हम
इक्वेशन वैसे फाइंड नहीं कर सकते, ये जो हमें सर पॉइंट दिए गए हैं इससे हम सर वो स्लोप निकाल कर और वो हाँ कर जो सकते हैं, इक्वेशन। हम कर सकते हैं, मगर हम नहीं करना चाहते थे, ये वो लेंथी प्रोसेस है, हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है मैट्रिक्स मेथड या स्टैटिक थ्योरी से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, मगर हम उसको डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए आसानी है। आप लोग क्या करेंगे, देखें मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है is this point is x1 and this is y1. Why? Because we need a linear regression. So for linear we have first of all you have to write y1 means we are focusing this value of y1. Clear? So y1 they cannot exit equal y because these points cannot lie on a straight line. So this will be approximate value. Okay, this symbol is on की बिसाइड नंबर 1 के करीब मेरे कीबोर्ड पर ये सिंबल आ रहा है, आप लोग देखें, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, उसको प्रेस करना है। सो इसका मतलब y1 की वैल्यू आपको ना अप्रोक्सीमेट ये करके देगा हमें, क्योंकि लीनियर चाहिए, और लीनियर के लिए आपको पता है क्या फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन इज mx1 प्लस b। आप लोग इसमें b कर लें, c कर लें, कोई भी कर लें, मगर m विल बी स्लोप नाउ and m x1. So this is x1. Clear? So we are now putting the value of x order pair here. Okay, so I have to write x1 and then I have to write plus let's suppose b. Okay, so now this Desmos automatically will give you the value of m and b here. Why? Because for linear two unknowns are there. One is the m slope, that is negative 0.09, another is b, that is y-intercept, that is 63.2. तो स्लोप नेगेटिव, और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको पता है नेगेटिव 9.7. सो दिस इज एप्रोक्सीमेट गुड फिटेड। क्लियर? तो आपने इक्वेशन डेस्मोस से बनानी है इसकी। आप लोगों ने जब आप में से किसी ने बुक पढ़ा होगा तो बुक में भी मतलब वो डेस्मोस से मतलब किसी भी ग्राफिकल सर इक्वेशन अभी आपने बनाई ना, तो सर वो थोड़ा रिपीट कर दें। ये बनाया ना मैंने, अभी इसको रिपीट करना है। डेस्मोस पे अभी जो इक्वेशन बनाई ना, तो कैसे कैसे बना, थोड़ा वो रिपीट कर। अच्छा चलिए मैं रिपीट करता हूँ। ये सी भी, अच्छा सी से आपको पता चलेगा कि हमारा स्लोप जो बी पार्ट में बना है वो सेम है या नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव है, तो वही सेम रिजल्ट आ रहा है जो हमने बी में एस्टिमेटेड किया था। ठीक है, तो वो बी में हमने जो किया था एस्टिमेटेड, मगर नाउ दिस लाइन विल बी एग्जिट थ्रू रिग्रेशन फंक्शन। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, देखिए इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा, अगर अगर यहाँ पर y होती, लेट सपोज y अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा y। यहाँ पर लेट सपोज आप लोग कोई भी y2 कर लेते हैं, सॉरी ये y2 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करूंगा, मैं कहूँगा y2 और फिर मैं लगाऊंगा इक्विवेलेंट साइन, ये साइन इक्विवेलेंट है। ठीक है, और फिर मुझे चाहिए लीनियर, तो लीनियर में जो जनरल फंक्शन होता है y इक्वल टू mx प्लस b, तो मैं m लगाऊंगा, और उसके बाद ये हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर y1 है या x2 1 है, सॉरी अगर x2 भी होता तो हम यहाँ पर लिखते m x2। क्लियर? और फिर प्लस हमें चाहिए, पहले मैंने b लिखा था, अगर आप चाहें तो c कर सकते हैं या चाहें तो b कर सकते हैं, और इसमें भी अगर m की जगह आप चाहें तो कोई भी कोएफिशिएंट a लिख सकते हैं। ठीक है, सो y2 इज विल इक्वल टू a टाइम्स x2 प्लस 3। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक फॉर्मूले के तहत आपको a की वैल्यू यानी कि स्लोप और c यानी कि y-इंटरसेप्ट वैल्यू खुद ही कैलकुलेट करें। सर सेकंड पार्ट का मतलब है कि हमने स्ट्रेट लाइन बनानी है अपनी तरफ से। हाँ, ये जो अभी मैंने बनाया था। ओके सर। ये रफली मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस तरह हो गया, आप लोगों ने कहा था स्लोप नेगेटिव हो, तो फिर हमने इसको एस्टिमेटेड। ठीक है, दूसरा कोई क्वेश्चन, यानी कि इसमें से आप लोग देखें जितने भी स्केटर डायग्राम या इक्वेशन के क्वेश्चन हो तो वो आपने डेसिमल से करने। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 13 तो देखें 13।
और उसके अलावा जो हमारे पास वेरिएशन के क्वेश्चन है ना, वो आपने बाय हैंड करने, ठीक है। सर 30 में क्या है? से स्केटर डायग्राम बना हुआ है, अभी हमें पॉइंट्स का कैसे पता चले एग्जैक्टली कि कौन सी एक्स है कौन सी वाई एग्जैक्टली? किस तरह मतलब? ये एक्स नीचे है ना और ये वाई ऊपर है। ये तो मतलब हमें कंफर्म सही से नहीं पता चल रहा है ना कि कौन सा वाई है कौन सी एक्स पे। मैं इसमें करना क्या है? सर ये एक पॉइंट मतलब फाइंड करनी है। अगर पेयर मालूम करना चाहते हो ना आप लोग, तो अगर यस आपको सर। एक चीज नहीं पता तो आप सर रफली, ऐसे ही लाइन बनानी है जो अभी आपने बनाई ना कि जो बेस्ट डिस्क्राइब करें इनको। हाँ तो वो आप ऐसे ही पॉइंट की भले जरूरत ना भी हो तो आप लोग इसको ना इस तरह स्केल की मदद से कर सकते हैं। बस सर उसकी इक्वेशन नहीं बनानी जैसे आपने अभी फाइंड की। इक्वेशन के लिए फिर आप क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट दूसरा ये पहला पॉइंट है आई थिंक 1,2 वो लिखेंगे। सेकंड पॉइंट इज लेट सपोज 1.5 और 2 पॉइंट समथिंग आप कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं भी पता, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत एरर भी आ जाता है तो इक्वेशन में इतना कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग रिमेनिंग पॉइंट लिख सकते हैं। और कौन सा करें? वेरिएशन का करेंगे? सर 63 और 68। ओके 63 पढ़ें, जरा रीड करें। यस। कौन पढ़ रहा है? अनुज रीड करो। हम्म, 63, 64. 63। By choose the fact that 13 inches is approximately the same length as 33 centimeters to find a mathematical model that relates centimeter y to inches x. Then use the model to find the numbers of centimeters in 10 inches and 20 inches. Okay, there is a relation between inches and centimeter. Right. Clear? So use the fact that 13 inches is approximate the same length as 33 centimeter. Clear? और आपको पता है कि what is the relation between inches and centimeters? Is it direct or डायरेक्ट indirect? डायरेक्ट सर। Direct. Clear? डायरेक्ट। So for direct, what should be the simple model for direct relation? y equal to kx Y is equal to मतलब kx. Y equal kx, or y directly proportional to x, so y will become equal to kx. But now instead of y and x, we have to use later. For inches example, and centimeters, inches and I and centimeters, I okay, and c. I and c inches is directly proportional to the centimeter. Centimeter. Yes sir. Okay, okay, I and c will equal to kcn. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Okay, now when initially data was given, you had to put in order to determine the value of k. So the data was 13 inches is equivalent to the 33 centimeter. So sorry, how many inches was there? 33. Sir 13 inches. 13 inches 33 centimeters. 33 centimeters. centimeter. So put करें 13 inches will equal to k times 33. Clear? So the value of k will become 13 over
33 33 over 13 sir. 13 over 33. Is it clear up to here? Yes sir. So what is 33 over 13 होगा। 33 सर over 33 13 over 13 होगा। क्यों? और नहीं भाई ठीक है सर ठीक है। के सर इस 13 नंबर over 33 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम डिवाइड करेंगे ना दोनों तरफ। हमें के चाहिए, 33/13 होगा सर। क्यों? तो जो इंचेस है वो 13 है ना, और जो इस इक्वेशन में से के की वैल्यू चाहिए, तो कैसे y करेंगे? सेंटीमीटर मैंने वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। सही है ना? सेंटीमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। नहीं नहीं, आपके पास ये इक्वेशन है 13 तो इक्वल टू सेंटीमीटर 8। लेफ्ट पे होगा और इंचेस राइट पे होगा ना। सही है सर। किस तरह मतलब? सर ठीक दोनों है हो सकते हैं ना, एक दूसरे साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। हाँ लेकिन सर तो के की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, दोबारा देखें आप। सही है सर सही है। ठीक सही है है ना? सर, सही है, सही है। आप बिल्कुल इसको उस तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। यानी कि अगर आप इक्वेशन बनाएं, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखूं सेंटीमीटर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंचेस को यहाँ पर लिखूं, तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस एग्जैक्टली में आपकी वैल्यू 33 और 13 आएगी, कोई मसला नहीं। तो आप चाहे तो इस तरह कर लें, लेट सपोज ये हो जाएगा सेंटीमीटर इक्वल टू के टाइम इंचेस। क्लियर? तो इसमें आप पुट करें, क्योंकि हमें गिवन है सेंटीमीटर 33 और ये के और इंचेस गिवन है 13। यहाँ से जहाँ के की वैल्यू आपको मिलेगी, के की वैल्यू मिलेगी 33 ओवर 13। तो ये वाली इक्वेशन मिलेगी आपको Cn इक्वल Cn इन टर्म्स ऑफ इंचेस, और यहाँ से इक्वेशन जो मिलेगी वो इंचेस इन टर्म्स ऑफ, तो दोनों कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर। ठीक है, तो बताएं कौन सी इक्वेशन। अच्छा, ये फिर डिपेंड करता है। आप नेक्स्ट पार्ट भी शायद पूछा गया था, वो किस में पूछा गया है? ये कहता है यूज मॉडल टू फाइंड द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन 10 इंचेस, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इंचेस अगर हमें चाहिए तो वो वाली इक्वेशन चाहिए, तो जिसमें इंचेस हम पुट कर सकें वो वाली इक्वेशन हमें चाहिए। तो वो कौन सी है? आई थिंक ये वाली होगी, जिसमें पुट करेंगे तो हमें सेंटीमीटर इजीली मिल जाएगा। इसमें फिर आप सेंटीमीटर पुट करेंगे तो इंचेस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए या इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप Cn जब कैलकुलेट करेंगे तो k उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो इवन देन आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन कर सकते हैं। सो व्हाट इज 33 अपॉन 13? यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो व्हाट इज दिस वैल्यू इन डेसिमल? 2.53 2.553 3 आगे 84 84। चलिए मैं इसको 4 कर लेता हूँ। ठीक है, 2.54 इंचेस, so centimeter will equal to 2.54 inches. ठीक है, is this thing is clear to you all? ये हमने मॉडल बना लिया है सेंटीमीटर वर्सेस इंचेस में। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इंचेस इक्वल टू 1/2.54 सेंटीमीटर, सो बोथ आर इक्वलेंट विद ईच अदर। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, तो इसमें 0 पॉइंट समथिंग आएगी कोई भी वैल्यू। ठीक है, मगर आपसे ये कहता है कि आप बताएं कि क्या वैल्यू होगी इसी मॉडल को यूज करते हुए, क्या सेंटीमीटर आएंगे इन 10 इंचेस। तो इंचेस हमें गिवन है 10 और दूसरा पार्ट है, मतलब दो पार्ट है। चलें 10 इंचेस की अगर मैं बात करें, ठीक है, तो ए पार्ट तो मुझे बताएं क्या होगा सेंटीमीटर? सर 25.4 25.4
इस तरह आप लोग कर सकते हैं। और 20 का भी वैसे ही आपसे हो जाना है, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम हियर इन दिस? और कौन सा कह रहे थे? 68 सर। 68 रीड करें जरा। Okay, from 53 to 60, find a mathematical model. They represent the statement. Okay, determine the constant of the proportionality. तो 58 कह रहे हैं आप लोग। 58 में कहता है एक jointly proportional to the R. Sorry, 68 okay, 68. यही पढ़ा है ना सर, सामने ही था। सर, आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है, ओके। तो इसमें देखिए क्या कहता है, पढ़ें जरा इसको। नजर तो कुछ आ नहीं लगा। सर नजर नहीं आ रहा। थोड़ा ऊपर करें। 68 सर, 68। हाँ, अब नजर आ सही रहा है है? सर, हम्म, सही है, सही है। हाँ पढ़ें। An overhead garage door has two springs, one on each side of the door. A force of 15 pounds is required to stretch each spring 1 foot. Because of a pulley system, the springs stretch only one half the distance the door travels. The door moves a total of 8 feet, and the springs are at their natural length when the door is open. Find the combined lifting force applied to the door by the springs when the door is closed. When door is closed. So is it clear up here? Is question is clear to you all? Physics sir. related question है, an overhead garage door has two springs, one on each side of the door. आपने इस तरह के दरवाजे देखे होंगे जिसमें दोनों साइड जो है ना स्प्रिंग लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बनाने की कोशिश करें, एक यहाँ पर स्प्रिंग और एक यहाँ पर, ठीक है। Force of 15 point is required to stretch each spring 1 feet, यानी कि अगर 1 फीट आपको दरवाजा बंद करना है तो आपको कितना फोर्स चाहिए? 15 पाउंड, ठीक है। Because of the pulley system of spring stretch only one half of the distance the door travels. अच्छा, ये आगे कहता है जो पुलिस सिस्टम की वजह से जो स्प्रिंग स्ट्रेच हैं वो आधे डिस्टेंस के लिए ओपन होते हैं, मतलब आधा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो डोर मूव्स अ टोटल ऑफ 8 फीट, ठीक है। तो 8 अगर फीट आप मूव करेंगे तो उस 8 का हाफ आधा फीट आएगा, यानी कि 4 फीट होगा। एंड द स्प्रिंग्स आर एट द नेचुरल लेंथ व्हेन द डोर इज ओपन। अगर ओपन होगा तो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे होगी। स्प्रिंग में मतलब कोई भी स्ट्रेच नहीं होगा। फाइंड द कंबाइंड लिफ्टिंग फोर्स अप्लाइड टू द डोर बाय द स्प्रिंग्स व्हेन द डोर इज क्लोज। तो दोनों के कंबाइंड फोर्स आपने बताना है, यानी कि ताकि अगर आप लेट सपोज कोई भी डोर अगर हम क्लोज करें तो दोनों का कितना फोर्स जो है ना ओपन होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन को आपने समझना है, और समझने के बाद ये मुझे बताएं कि क्या गिवन है और क्या मालूम करना है आप लोगों ने, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप लोग अगर इसको समझ गए तो फिर आपको ये पता होगा कि वी हैव टू थिंग, वन इज द फोर्स एंड अदर थिंग इज डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेच ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो आप लोग इमेजिन करें जिस तरह कोई भी दरवाजा होता है तो उसको बंद होते हैं तो स्प्रिंग में क्या रिलेशन होती है, और क्लोज होता है तो स्प्रिंग में क्या होती है। यानी कि आपके पास कोई भी शॉप वगैरह देखते हैं तो इस तरह का दरवाजा होता है जिसमें अगर आप इसको लेट सपोज
ओपन करते हैं, उसको ऊपर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है, वो घूमते हैं, और यहाँ पर भी स्प्रिंग लगे होते हैं, जिस तरह आप शटर कहते हैं, ठीक है, पर्दा होता है, वो ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको, इस शटर को आप ऊपर करेंगे, ठीक है, तो खुलेगा, ठीक है, ये ऊपर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और अगर इस शटर को आप नीचे करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया कि स्प्रिंग दोनों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। और इस टोटल जो दरवाजे की लेंथ है वो गिवन है, वो कितनी है, वो कितनी है, ये टोटल 8 फीट, द डोर मूव्स टोटल 8 फीट, ठीक है, ओके। तो अच्छा मुझे बताएं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस डिस्टेंस फीट एंड फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान क्या रिलेशन है, पहले तो मुझे ये रिलेशन, यानी कि आप इमेजिन करें दरवाजा आप लोगों का जो कोई भी शटर है, ठीक है, वो लेट सपोज ओपन है, इसको आप क्लोज करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है क्लोज करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और जितना आप उसको नीचे लेके आएंगे तो उतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मुझे बताएं क्या रिलेशन होगी इस फोर्स और डायरेक्ट सर। डायरेक्ट रिलेशन। सर सो कैन आई राइट दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ फॉर फोर्स, ठीक है, एंड इसको मैं चलें डिस्टेंस से कवर करता हूँ, जो स्प्रिंग में स्ट्रेच आएगी उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डी फॉर डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस फोर्स विल बी k टाइम्स t, क्लियर, यस और नो। यस सर। अब आप Yes, देखिए कि ये आपको एक इनिशियली स्टेटमेंट में गिवन थी, अ फोर्स ऑफ 15 पाउंड्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग 1 फीट, यानी कि फोर्स 15 है और स्ट्रेच कितना है, यहाँ पर लिखता हूँ, जो गिवन डेटा है वो आप बताएं, फॉर F इक्वल टू 15 15 पाउंड, and D is equal to 1. देन D इक्वल टू 1 इंचेस में, फीट में, अच्छा फीट में, ठीक है। तो मुझे बताएं, ये पुट करें तो क्या होगा, 15 इक्वल टू 1 टाइम्स D, sorry 1 time K, so K will become 15। तो K अगर 15 है तो आपके पास इक्वेशन क्या मिलेगी, फोर्स इक्वल टू 15 टाइम डिस्टेंस, 15 times D. ठीक है, ये नो। और अगर अगर हमारा डिस्टेंस अगेन गिवन है, लेट our total distance is let's suppose 8 feet, ठीक है, तो मुझे बताएं टोटल फोर्स मतलब F कितना होगा, कितना होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन में आपको पता है कि ये हमारी इक्वेशन है या मॉडल है, ठीक है, और इसमें आप पुट करें लेट्स सपोज t इक्वल टू 8, कितना होगा, 120 सर। 120 सर। 120। कितना होगा, 120। 120 120 न्यूटन, न्यूटन है या किस में फोर्स, पाउंड में, न्यूटन फोर्स का यूनिट Force pounds में है। पाउंड्स में, ठीक है, मतलब आप लोग ये वेट है, दूसरे लफ्ज में आप वेट लगा के ना शटर को नीचे कर रहे हैं, ठीक है, ओके। मुझे बताएं, अब ये आपका आंसर है, तो मुझे बताएं अगर ये दोनों पुलिस के ऊपर स्ट्रेच आ रही है तो इसका हाफ आप करेंगे तो कितना होगा, मींस दिस f कैन बी रिटन एज सम ऑफ दीस टू नंबर्स, तो 120 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा, 60 आएगा आई थिंक, मतलब 60 स्ट्रेच आएगा एक स्प्रिंग में, 60 दूसरे में आएगा, तो ये 120 होगा, मींस दिस 60 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 120 डिवाइडेड, मतलब ये टोटल है, ठीक है। Is it clear up there? हेलो, Yes sir. दूसरा कोई हो प्रॉब्लम्स,
तो इसी तरह आप लोग सर देखें 70 करवा दे। 70 में देखें क्या है। सेवेंटी रीड करें जरा। Yes, who will read? 70 मैं कर देता हूँ. Mhm. The work W required to lift an object varies jointly with the object's mass m and the height h that the object is lifted. The work required to lift a 120 kilogram object 1.8 meters is 2116.8 joules. Find the amount of the work required to lift a 100 kilogram object 1.5 meters. Okay, so is question is clear to you all? Work to lift an object varies jointly. Jointly vary से क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा था jointly यानी एक से ज्यादा हो तो हम उसको jointly vary और directly proportional हमने कहा था, ठीक है। So W मतलब इस स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो मैं लिखूंगा W varies directly jointly with mass m and height h, m times h. So in other words W will equal to K m h, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो होता है द वर्क इज जॉइंटली वेरीज विथ m एंड h, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो किया है वो ये वाली क्वेश्चन, ठीक है। और आगे हमें k चाहिए तो k के लिए आपको गिवन है, आप लोग पुट करेंगे वर्क W120 और ऑब्जेक्ट क्या चीज, अच्छा 1.8 ये मीटर है, ठीक है। और ये सॉरी मास है 120, यानी कि इसमें जो डेटा गिवन है वो मैं लिखता हूँ। एम जो है ना वो आपको गिवन है 120 kg और जो हाइट है वो है 1.8 और जो W है वर्क वो है 2116.8। ये तीनों चीजें इसमें पुट करेंगे तो आपको K की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही K वैल्यू मिलेगी तो आपको मॉडल मिल जाएगा और मॉडल बनाने के बाद फिर आपसे कहता है फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क they required to lift 100 किलोग्राम ऑब्जेक्ट 1.2 मीटर, यानी कि हाइट है आपके पास 1.5 और जो मास है वो 100 इसको पुट करेंगे। आई थिंक ये कैलकुलेटर से अगर आप करना चाहें तो हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1.9 का 97 तो करवाएं। 1.9 फिर कहाँ से आ गए? अभी वो भी तो अगले क्लास में की थी ना, उसके अच्छा बाद यही क्लास हुआ है सर। 90 कौन सा क्वेश्चन बताया? 97 रीड करें जरा 97। ओपन करें तो रीड करें। हाँ 98 रीड करें। The function f of x equal function has an inverse function and f inverse of 3 equal to -2, find k। अच्छा अब देखें ये फंक्शन आपके पास गिवन है, ठीक है, और इसके एक इनवर्स आप 3 गिवन है -2। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ व्हाट विल बिकम f ऑफ -2 उसकी क्या होगी? 3 क्लियर आएगी ना? इज इट क्लियर? यस सर। अब इसमें से आपको k की वैल्यू मिलेगी f ऑफ -2
पुट करेंगे और 3 आएगी, तो राइट साइड में 3 लिखता हूँ, ठीक है, और ये k लिखता हूँ, और x की जगह में -2 लिखूंगा, तो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और फिर -2 क्यूब 8, सो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 10 + 2 12, so k will become 3/12. Is it clear up to? Yes, sir. ठीक है, should we move to the next chapter? Okay, sir. Thank you, sir. तो इस तरह के आसान आसान प्रॉब्लम है, आप लोगों ने लाजमी इसको देखने हैं, ठीक है। Let me start now chapter 2 here on next page. Linear function. First of all, you have to tell me what is polynomial functions. Do you know polynomial function? क्या होते हैं? Having many terms. यस सर, जिसमें सर मल्टी नहीं, और कोई many term वाली डेफिनेशन नहीं है। इसमें सर इक्वेशन एक से ज्यादा हो, मोर देन 1 डिग्री, सर जिसका वेरिएबल हो, कोएफिशिएंट हो और उसका जो पावर है वो कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर ना हो, नॉन नेगेटिव रियल नंबर ना हो। तो मैं लिखता हूँ पॉलीनोमियल की डेफिनेशन। ये आपके पास फंक्शन है, लेट सपोज इन जनरल अभी मैं बात करूंगा, उसके बाद पर्टिकुलर केसेस पर आते हैं, ठीक है। सो फंक्शन लेट सपोज n xn प्लस an -1 x power n -1, let's suppose an -2 xn -2 plus up to, let's suppose a 3 x cube plus a 2x square plus a1x plus a naught. Clear? So this is a polynomial equation if n, this power n is belong to positive integer including 0. n से मतलब आप देखें जो वेरिएबल x से अगर उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब नेचुरल नंबर हो इंक्लूडिंग 0, तो वो इक्वेशन हमारा, वो फंक्शन हमारा पॉलीनोमियल फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज f of x equal to ax plus b, दिस इज पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इज एग्जांपल ऑफ पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। डिग्री क्या होती है वैसे बाय द वे? हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। पावर सर, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, ठीक है। और दिस g of x equal to ax square plus bx plus c, this is a polynomial of degree 2, and polynomial of degree 2 के लिए a cannot equal to 0. Why? Because if a will be 0, then function will be polynomial, but the degree will be lesser than 2 and degree will be 1, so that will be linear function. For quadratic function a should not equal to 0. Clear? अब एक काउंटर एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को पॉलीनोमियल फंक्शन समझ आ जाए। अगर मैं इस तरह लिखता हूं कोई फंक्शन 2x 1/3 plus 4, so this is not polynomial. Why this is not polynomial? Why? Because the power of x is not integer. This 1/3 is not integer, so this is why this is not a polynomial function. और अगर मैं दूसरा फंक्शन लिखता हूँ f of x equal to 3 over x plus x power 4 plus x cube or x plus 3. Again, this is not a polynomial. Why this is not polynomial? अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x power -1, ठीक है। बाकी ये टर्म तो ठीक है, मगर इसमें मसला है, this -1 cannot belong to integer, positive integer in fact. Clear? So this is not again polynomial function. तो पॉलीनोमियल फंक्शन में क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल का पावर नेचुरल नंबर हो, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन में ना हो और कोई भी नेगेटिव ना हो,
हाँ, अगर जीरो हो तो वो स्पेशल फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन जिसको आप कहते हैं। दिस कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, यानी कि अगर मैं इस तरह लिखता हूँ f of let's suppose f of x लिखता हूँ 3, ठीक है। This 3 can also written as 3x power 0. So this is example of polynomial of degree 0। जो कांस्टेंट होता है वो भी polynomial होता है, उसकी डिग्री 0 होता है। 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में या फ्रैक्शन में आ जाता है तो वो हमारा polynomial नहीं है, ठीक है। I hope you got the idea of polynomial function. So this is the polynomial of degree 1, that is linear. This is polynomial of degree 0, this is constant. This is polynomial of degree 2, that is quadratic. Yes, Sir? but yes. तो सर इसकी पहले एग्जांपल की थी उसमें x की पावर 1/3 था, तो वो पॉलिनोमियल क्यों था? वो तो आपको पता है पहले कि इसे इस तरह लिखता हूँ, लेट्स सपोज f of x equal to 1/x लिखता हूँ, ठीक है। So is it a polynomial? नहीं सर, वो था ना x की पावर 1/3, पॉजिटिव 1/3। ठीक है, f of x equal to x power 1/3, is it a polynomial? हाँ, ये क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्यों नहीं? क्योंकि हमने कहा था जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर इंटीजर। इज 1/3 इज इंटीजर? नहीं। अच्छा, पॉजिटिव प्लस 0 वाले इंटीजर होते हैं, 0 1 2 3, मतलब ये नेचुरल नंबर यूनियन 0 होते हैं दूसरे लफ्जों में, ठीक है। तो अगर पावर इनमें से हो तो वो पॉलीनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें पावर 1 है तो ये क्यों नहीं पॉलीनोमियल, ये 1 तो इसमें से बिलोंग करता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा और 1 है ना, तो ये क्यों नहीं है? सर हम इसको जब उसको सेट करेंगे तो उसकी पावर माइनस में चली जाएगी और -1 जो है वो पॉजिटिव क्योंकि इस वजह से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, a n x पावर n था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है x ऊपर है, तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1 टाइम x पावर -1। तो अब आप देखेंगे कि वो पावर उसका 1 नहीं बल्कि -1 है, एंड दिस -1 कैन नॉट बिलोंग टू इन फैक्ट z इंटीजर्स, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं सर? हाँ, 0 का भी मैंने बताया, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन इज एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है। Is it clear up to? Is polynomial function are clear to you all? अच्छा, इसमें हम लीनियर फंक्शन आपको पता है, आइडेंटिटी फंक्शन पता है, मगर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वंस अगेन क्वाड्रेटिक फंक्शन को। क्वाड्रेटिक फंक्शन या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की जब हम बात करेंगे तो आपको पता है a के नॉट इक्वल 0, क्योंकि अगर a 0 हो तो पॉलिनोमियल तो रहेगा मगर डिग्री 1 और लीनियर हो जाएगा, ठीक है। और इसका ग्राफ आपको पता है, एज यू नो दैट द ग्राफ ऑफ पैराबोला इज आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्लियर? दिस थिंग ऑलरेडी यू नो वेरी वेल। इसमें कोई मसला हो? कोई नहीं है सर। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें कैसे पता चलेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, टेक एग्जांपल ऑफ very easy and simplest example, x square, clear? So as you know that the graph of x square will become parabola upward, और अगर मैं आप लोगों से f of x equal to negative x square का ग्राफ मालूम करना चाहूँ तो entirely now graph of this parabola will be downward, just like this one. Okay, what is a here? A is 1, clear? What is a here? A means leading coefficient. So हम कहेंगे in general if a is positive, why? Because it is not 0. So for a is not equal 0, we have two possibility, either a will be positive or negative. If a is positive, then parabola opens upward in general, clear? And if a is negative, then parabola opens yes or no? Yes sir.
और अगर पैराबोला Yes, sir. अपवर्ड हो मीन्स ए पॉजिटिव हो, तो इसमें बताएं क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू? मिनिमम होगी सर। दिस वर्टेक्स इज नोन एज minimum value, Minimum. or this here if a is negative or parabola downward, this contain maximum. Clear? Means in previous example you can say that easily, if we have function f of x equal to x square, this x square will always greater or equal to 0. Clear? So its minimum value is 0, 8 x equal to 0. Clear? और अगर मैं Yes, sir. minus x square कर लूं, this will become always less than or equal to 0, and it has maximum value at maximum value 0 at x equal to 0. तो इसकी वैल्यू 0 होती है जब आप 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम अब मालूम करना चाहते हैं पैराबोला की, ये तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान से एग्जांपल लिए। इन जनरल अगर आपके पास प्रॉब्लम हो तो कैसे पता चले कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और कहाँ पर है, और मिनिमम वैल्यू है तो कौन सी है। मींस नाउ द मेन फोकस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड मैक्सिमम, मिनिमम एंड पैराबोला अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, so these things already you know very well, so just we are recalling now. And there is another thing, there is known as axis of parabola. Clear? A line, a vertical line where parabola is symmetric with each other. So ये line जो है इसको हम कहते हैं axis of parabola, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इस पैराबोला को फोल्ड करेंगे इस लाइन के साथ तो वन साइड विल कंटेन मिरर इमेज। दिस इज कहां पर ये आ जाती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। What is leading coefficient? Leading coefficient is the coefficients of highest power variable. तो ऐसा ट्रैम हो जिसमें हाईएस्ट पावर हो उसका कोएफिशिएंट हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं इन जनरल। और ये स्ट्रेचिंग एंड स्केचिंग आपको पता है। ठीक है, वर्टिकल श्रिंक एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये हमने क्वेश्चन भी दिया था मिड में, आपको पता होगा। ठीक है, बहरहाल दिस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। There is f of x equal to ax minus h square. Okay, and this form will give you each and everything in which we are interested. This form will give you whether parabola is upward, downward, what is maximum value, what is minimum value, and what is its axis of parabola. Clear? And what is this vertex. So I am telling you regarding this form. So this is known as a standard form. The graph of f is a parabola whose axis is vertical line at x equal to h. जो ये x माइनस h है उसमें x की वैल्यू अगर आप h पुट करेंगे तो वो हमारी लाइन होगी जिसको आप वर्टिकल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट h का मके वो इंटरेस्टेड है जिसको हम वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, और मतलब a के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड, अगर ये नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो फिर इसको मैं डिटेल में समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल चलिए इस एग्जाम्पल से आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फंक्शन अगर आपको ओरिजिनल फंक्शन गिवन है तो इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि प्लस और माइनस करने के बाद। ये प्रोसेस कैसे हो रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, मगर दिस फंक्शन और एनी गिवन फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड easily into standard form where you may see that what is vertex and what is in fact maximum or minimum value and what is its axis. Okay, so if I am right here, x plus
2 whole square minus 1. Okay, I'm writing here so that you can understand it easily. Clear? So f of x equal to, let's suppose x minus 2 whole square plus, for example, 1. Clear? So here, as you know that, as you know, x square will always greater or equal to 0. Clear? So इसका मतलब ये स्क्वायर है इस टर्म के ऊपर, ठीक है। अब इस, क्योंकि इस पूरे टर्म का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल 0 होगी, ठीक है। तो इसकी मिनिमम आपको पता है 0 के ऊपर मिनिमम आती है, तो ये टर्म 0 कब होगा? तो जब जैसे ये टर्म 0 होगा तो उस वक्त फंक्शन मिनिमम वैल्यू इसकी कहलाएगी, क्योंकि जिसका स्क्वायर है आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, दिस विल बिकम ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और समटाइम इक्वल 0। सो हमें इसको, इस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर मिनिमाइज दिस x minus 2 square should equal to 0, and where or at what value this function will be 0? This will 0 at x equal to 2. आप देखें, चाहे पुट करेंगे x equal to 2 तो ये वेनिश हो जाएगा, आपको 1 मिलेगा, ठीक है। मगर 2 के अलावा आप कोई भी नंबर पुट करेंगे, लेट सपोज मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 minus 1 minus 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 आपको, मतलब फंक्शन आपको वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है। तो f of 2 equal to 1 is मिनिमम, ठीक है। आप लोग देखेंगे अगर आप 2 के अलावा कोई भी फंक्शन पुट करेंगे, ठीक है, सो f of x will always greater than or equal to 1. 1 से ग्रेटर मिलेगा हमेशा, 1 से कभी भी लेस नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब आप इसमें पुट करेंगे लेट सपोज 2, तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे 2, 1 इज अ वर्टेक्स, मतलब ये इसकी टर्निंग पॉइंट है। 1 2, ये क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट है वैल्यू, ठीक है, तो बाकी तमाम पॉइंट इससे ग्रेटर ही होंगी। और आप लोग देख सकते हैं ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, ठीक है, अपवर्ड होगा तो मतलब क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो यहाँ से होकर जाएगा, ठीक है, ये सर। और दूसरा, अगर मैं x इक्वल टू 2 पर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पर वर्टिकल लाइन, this is axis up, means now parabola is symmetric according to this line. If you fold vertex, if you fold this parabola according to this line, one side will contain more. So ये x equal to is axis, इसमें हमने क्या क्या चीजें मालूम कर ली, ठीक है। x equal to और वर्टेक्स जो है ना वो 2, 1 है, और दूसरा मिनिमम वैल्यू। अच्छा, इसमें 2 नंबर है 2, 1, कौन सी वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी? 2 होगी, 1 होगी? 1 होगी सर। और कहाँ पर होगी? एट x इज इक्वल टू 2। इसको हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह है कि आपको को कैसे किसी भी गिवन इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन को कन्वर्ट करना आना चाहिए स्टैंडर्ड में, तो उसका मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूँ, दैट विल बी देन ईच एंड एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू। तो मैं जनरल पहले ओरिजिनल फंक्शन लिखता हूँ, चले फिलहाल मैं लेफ्ट साइड क्योंकि इजी है तो आगे लेफ्ट साइड ही बात कर रहा हूँ। इमेजिन एफ ऑफ एक्स is on the right side, okay, so can I write
Okay, as you know, the formula of completing square, if you have given these three terms, a square plus b 2ab plus b square, then you may easily write a plus b whole square. Now I would convert this my given function into completing square, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ये पहला टर्म है a square, मगर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर में से तो वो खुद से यहाँ पर लिखता हूँ ताकि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकूँ. So can I write this thing as, if I multiply here 2 and divided by 2, I think this will be cancellation with each other, and there will be no difference in your original function. So this is our a square plus 2ab, clear? So this is our b over 2a is our b, clear? A square plus 2ab. So plus b square is missing, जो कि b over 2a है. क्योंकि मैंने 8 किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए, for balance I have to also subtract this same term. So can I write b over 2a whole square? Can I write yes or no? So is our original function is same. So now what should I write instead of these three terms? इन तीनों टर्म की जगह में क्या लिखूं? x plus b upon 2a whole square. Yes, very good. So this will become x plus b over 2a whole square minus b square over 4a square. Yes. Is it clear up here? Again a multiply अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा? ये प्लस सी है, इसको मैं पहले लिखता हूँ, माइनस बी स्क्वायर ओवर 4. Is it clear up here? ओके, अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इजीली कि हमने ओरिजिनल फंक्शन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, दिस इज नोन एज और ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, इसके ऊपर स्क्वायर है और एक्स इसमें है. ठीक है, तो अब मुझे बताएं क्या वर्टेक्स होगा, एक्सिस क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? चलिए पहले मुझे वर्टेक्स बताएं, व्हाट विल बिकम वर्टेक्स. इसको जीरो करना है. इसको जीरो करने के लिए अगर मैं नेगेटिव बी और 2a पुट करूं तो जीरो हो जाएगा, आपको ये वाला टर्म मिलेगा. ठीक है, और दैट टर्म विल बी इन फैक्ट maximum or minimum depend on a. If a is positive, then this will become a minimum value. If a is negative, it will be maximum value. So vertex will become negative b over 2a, comma आप इसमें पुट करेंगे तो मिलेगा. चलिए मैं लिखता हूँ एक, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आप नेगेटिव 2 और b या फिर आप इसमें इस तरह लिखें. यस बताएं सर. इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, वो कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन से, डायरेक्ट पता चल जाएगा. हाँ ये भी सही है. यस सर. तो आप इस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है, कंपेयर करने से सर डायरेक्ट पता चल जाएगा. कंपेयर करने, मगर ये हमने जनरल फार्मूला बनाया. अब जैसे ये वर्टेक्स आ गया तो हम कहेंगे इन जनरल में, आपको एक मतलब बताऊं कि एक्सिस क्या होगा, x इक्वल टू नेगेटिव b ओवर 2a इज एक्सिस. यानी कि अगर आपको डायरेक्ट गिवन हो ओरिजिनल में तो आपका फार्मूला आ गया ना, नेगेटिव b अपॉन 2a करेंगे तो एक्सिस मिलेगा. और इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f ऑफ नेगेटिव b ओवर 2a विल बी योर मिनिमम और मैक्सिमम. मिनिमम होगा अगर a क्या होगा और मैक्सिमम होगा अगर a क्या होगा. फॉर मिनिमम a शुड बी पॉजिटिव, a greater than 0. ओके, और मैक्सिमम होगा a लेस देन 0. ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्ट आपको ये पता चल जाए. और या फिर आप इस f ऑफ नेगेटिव b अपॉन 2 की जगह ये भी लिख सकते हैं 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4. और क्या चाहिए? हाँ, और ये हम कह सकते हैं कि
this parabola will open upward if it is positive or downward if it is negative. So this is all about, I think, your exercise 2.1. So let me check what are remaining things in this exercise. Clear? Okay, so this is this overall summary of our discussion. You know very well. Clear? I think no need to repeat. Is it clear up there?